Greetings students. In this module, we will discuss about the basic principle and construction of electric motor. And more specifically, we will discuss about the DC motor. DC stands for direct current. So there are two types of current, alternating current and direct current. So in this module, we will discuss about the electric motor, which we generally use in fan, toys, blenders, and there are number of electrical instrument in which we use the electric motor. जिसमें हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उनके अंदर जनरली हमने क्या यूज किया होता है, इलेक्ट्रिक मोटर. And more specifically we will discuss about the DC motor. So there are two types of motor, AC motor and DC motor. The working principle of both are totally different, but in your syllabus the only is DC motor. So in this module we will only discuss about the basic principle and what are the different components of electric motor. The working we will discuss in the next module. So first you should aware about the basic principle of working of electric motor कि कौन से basic principle पे वो काम करते हैं. In one of the module of this chapter we discuss force on a current carrying conductor inside a magnetic field. ये हमने एक मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि किसी कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं और उसके चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं. दैट मर्करी फूल था, उसके अंदर एक वायर थी, वो ऐसे हिलने लग जाती है. द सेम मॉड्यूल. सो इन दिस द बेसिक प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था कि जब हम उसको एक फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं और दोनों तरफ से उसके अराउंड में क्या लगा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या हो जाता है, जैसे हम करंट पास करते हैं उस कंडक्टर में से, द कंडक्टर विल प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगी होती है तो वो क्या करने लग जाता है, मोशन में आ जाता है. उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से वो जो कंडक्टर है वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है. वी विल यूज दिस सेम बेसिक प्रिंसिपल फॉर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. मीन्स if an exam question is write the basic principle of electric motor, the biggest mistake that student make in the exam is in the basic principle of electric motor they write electric motor convert electrical energy into mechanical energy. This is not the basic principle. The biggest mistake in the basic principle of electric motor is most of the student write electric motor convert electrical energy into mechanical energy. This is not the basic principle. This is the फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर कि वो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. इफ द क्वेश्चन इज राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, दिस इज रिटन हियर. मीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर you can write any of these two terms. So what is written, when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it. कि हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कोयल लेते हैं. कोयल इज सिमिलर टू दैट ऑफ सोलेनोइड. कि एक सोलेनोइड लेते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर की शेप में बनाते हैं, रेक्टेंगुलर. That rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through that particular rectangular coil. एक rectangular coil बनाते हैं, सोलेनोइड की तरह होती है कि मतलब 4 सोलेनोइड ले लेंगे हम, 1 2 3 4, और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं with the source of current. So that rectangular coil is placed in a magnetic field and the current is passed through that rectangular coil. A force act on the coil which rotates it continuously. So पर force लगता है और वो घूमने लग जाती है. You can also write the other one. The force on a current carrying coil in a magnetic field cause it to rotate continuously. कि एक करंट कैरिंग कोयल होती है, मेनली रेक्टेंगुलर कोयल, उसके ऊपर जब हम उसमें से जब हम करंट पास करते हैं, बाहर से मैग्नेट लगी होती है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से जो मोटर है वो क्या करती है, रोटेट करती है. सो this basic principle will be more clear after we discuss the construction and working of electric motor. The basic principle will remain same कि कंडक्टर है, उसमें से करंट पास करते हैं, उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हम बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बाहर वाले की वजह से कंडक्टर के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से वो क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है. So now we will discuss what are the different components of electric motor. So first component of electric motor, there is a armature. So what is the meaning of armature? So armature में क्या होता है कि सोलेनोइड भी है, ऑलरेडी डिस्कस कि सोलेनोइड हम कैसे बनाते हैं. एक प्लास्टिक या कार्डबोर्ड का रोल लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, वायर रोल करते हैं. सिमिलर टू दिस मार्कर, वायर हियर आई हैव यूज्ड द रबर बैंड टू शो द कोइलिंग ऑफ वायर. तो इस तरह से टाइटली पैक हम क्या कर देते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रोल करते हैं.
इन केस ऑफ सोलेनोइड वी यूज दी प्लास्टिक और कार्डबोर्ड रोल, उसके ऊपर रोल करते हैं, लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर विल इंक्रीज इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर, कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सो वी यूज ए करंट ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। व्हाट इज रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्मेचर। उसमें क्या होता है, एक सोलेनोइड होता है रेक्टेंगुलर शेप का, वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, उसको हमने रोल किया होता है किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। कि एक रेक्टेंगुलर शेप में सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को कंटिन्यूसली रोल करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, being armature ABCD consists of a large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core। तो उसके बीच में क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर कोइल होगा। सेकेंड इज फील्ड मैग्नेट। उस रेक्टेंगुलर कोइल के दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, एक परमानेंट मैग्नेट रख देते हैं। जनरली इन केस ऑफ कमर्शियल मोटर वी डोंट यूज द परमानेंट मैग्नेट। दिस पॉइंट वी विल डिस्कस आफ्टर द एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर। की जो कमर्शियल मोटर होती है उसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट जनरली नहीं यूज करते, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या किया है, दोनों तरफ क्या रख दिया है, एक मैग्नेट दे दिया। जनरली हम यू शेप मैग्नेट ले लेते हैं। यू शेप मैग्नेट में क्या होगा, इस तरह से शेप हो जाएगी, इस तरह से उसको हम पीछे में इस तरह से रख देंगे, जैसे ये है हमारा, इस तरह से रख देते हैं। तो एक एंड साइड पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, एक एंड पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। सो आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को कॉइल किया हुआ है हमने, उसके दोनों तरफ हमने क्या रखा हुआ है, एक परमानेंट मैग्नेट रखी हुई, इसको फील्ड मैग्नेट बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल यू शेप मैग्नेट। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर विच इज स्प्लिट रिंग एंड कम्यूटेटर मार्क्ड एज X and Y। व्हेन यू सी इन दिस डायग्राम, तो ये जो हमारा सोलेनोइड था, इसके जो एंड्स हैं उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वेल्ड कर देते हैं हम, जनरली वेल्ड विद द स्प्लिट रिंग और ऑल्सो कॉल्ड एज कम्यूटेटर। तो ये जो सी शेप आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो इस तरह से होते हैं। वाई इट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग? कि एक मेटल की अगर हम रिंग लेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये है, तो ये घूमेगी, लेकिन इन दोनों में आप देखोगे इसमें क्या है कि स्प्लिट रिंग जो है वो कनेक्टेड है। जनरली स्प्लिट रिंग नहीं बोलेंगे, एक सिंपल रिंग है। रिंग में क्या होता है, एक सर्कल रहेगा, वो दोनों जुड़े रहेंगे। स्प्लिट रिंग में क्या होगा, इस तरह से रहेंगे कि जो एंड्स होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते, अलग अलग होते हैं, called commutator। तो क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन द बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर? तो फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग इज टू रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट। ये जो आर्मेचर है, इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। तो जब मोटर काम करती है तो ये जो कोयल होती है रेक्टेंगुलर कोयल, ये मूव करती है, और ये स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर भी हैं, वो भी इसके साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो फर्स्ट वाज आर्मेचर, सेकंड वाज मैग्नेट, थर्ड इज स्प्लिट रिंग। So split ring function is the device which reverse the direction of current in the circuit or the rectangular coil ABCD। जो कोयल है उसमें वो डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो टू एंड ऑफ कोयल ABCD वेल्डेड विद द स्प्लिट रिंग एंड रोटेट विद द कोयल। ये जो स्प्लिट रिंग है वो इसके साथ वेल्ड किए होते हैं, तो जैसे वो घूमती है वैसे स्प्लिट रिंग भी घूमती है। वन मोर क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम दिस स्प्लिट रिंग इज द इनर साइड ऑफ दिस स्प्लिट रिंग is generally made insulated। What is the meaning of insulator? Which doesn't allow the current to pass through them। कि जनरली क्या होगा, ये जो स्प्लिट रिंग है, अगर आपने किसी ने मोटर ध्यान से देखी हो तो उसके अंदर एक शाफ्ट होता है, वो इस तरह से कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो वो जो शाफ्ट होता है वो इस तरह से इस स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी, साथ में स्प्लिट रिंग घूमती है, और साथ में एक शाफ्ट अटैच होता है स्प्लिट रिंग के साथ, वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। सो अंदर की साइड को हम क्या करते हैं, द इनर साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग इज इंसुलेटेड। क्यों? अगर हमने यहाँ से शाफ्ट कनेक्ट कर दिए तो ये शाफ्ट जो हमारा साथ में घूम रहा है, अगर वो अंदर से इंसुलेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल के होते हैं जनरली शाफ्ट, तो उसमें भी करंट आ जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है पर्सन को जो उसको यूज कर रहा है। तो दैट इज बाय द इनर साइड ऑफ दिस स्प्लिट रिंग इज मेड इंसुलेटेड। इंसुलेशन कर देते हैं जिससे वो जो शाफ्ट इसके साथ कनेक्टर वो घूमेगा इसके साथ, तो उसमें करंट नहीं लगेगा इंडिविजुअल को। नेक्स्ट इज, I hope this is clear to everyone, the function of commutator। So this question generally comes in the form of MCQs। Next is the carbon brushes or sliding contacts। Next is, अब ये हमने सारा सेटअप तो बना लिया, अब अभी हमने जब फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो हम क्या करते थे,
कंडक्टर ले रहे थे, उसमें से करंट पास करते हैं। अब इस आर्मेचर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी, जब इसमें से हम करंट पास करेंगे। ये किसके साथ कनेक्टेड, स्प्लिट रिंग के साथ। अगर स्प्लिट रिंग क्या हो रही है, आर्मेचर के साथ घूम रही है, लेट अज्यूम वी डायरेक्टली कनेक्ट दी टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, कि वायर की हेल्प से हमने डायरेक्टली स्प्लिट रिंग के साथ उसको परमानेंटली वेल्ड कर दिया। तो दिक्कत क्या होगी, जब मोटर घूमेगी तो जो वायर हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ट्विस्टेड, उलझ जाएंगे एक दूसरे में। सो वो ना हो हमारे साथ, दैट इज वाई वी यूज द कार्बन ब्रशेस। So here in the diagram, carbon brushes are represented by P and Q. Carbon brushes क्या होते हैं, एक तरह के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होते हैं। Let assume my hand is a split ring, और मैंने वायर को ऐसे कंटिन्यूसली उसके साथ फिक्स कर दिया, तो जब वो घूमेंगे तो वायर भी घूमेंगे और ट्विस्ट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो उसकी बजाय हम क्या यूज करते हैं, कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं, कि भाई एक हमारी स्प्लिट रिंग है, उसके ऊपर इस तरह से कार्बन ब्रशेस होते हैं। ब्रश क्या होंगे, इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे। कार्बन ब्रश यूज करने का मतलब क्या है, वी आर यूजिंग द ग्रेफाइट, बिकॉज द ओनली एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, कि जिसको हम ड्राई सेल में भी यूज करते हैं। तो वो उसके साथ कनेक्ट रहता है, ब्रश की तरह रहेगा, वो है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की तरह। ये स्प्लिट रिंग घूमती रहती है और जो कार्बन ब्रशेस हैं उसको टच करके रखते हैं, कि वो घूमेगा, जैसे ही वो स्प्लिट रिंग घूमेगा तो उसको टच करेगा, उसके साथ वो साथ में नहीं घूमेगा। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। वो इस तरह से वो घूमता रहेगा रिंग, और वो उसके साथ क्या रहेंगे, अटैच फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि अगर वायर कनेक्ट कर देंगे तो वायर क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रहता है, ब्रशेस की फॉर्म में रहता है, और वो उसके साथ क्या रहता है, वो घूमती रहती है मोटर, वो उसके ऊपर ऐसे टच करके रखता है और करंट को रेक्टेंगुलर कोयल में फ्लो कराता है। और एक चीज का ध्यान रखना कि जब ये कोयल घूमेगी तो कोयल के साथ तो हमने ये स्प्लिट रिंग के साथ तो ब्रशेस को कनेक्ट कर दिया, ब्रशेस विल बी अटैच टू दी कार्बन स्प्लिट रिंग, कि कार्बन ब्रश जो है वो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है, वो घूमेगी। तो जब वो इस पोर्शन में आएंगे जहां से वो कनेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो जब ये वाला ब्रश ये घूमने की वजह से इस वाले एरिया में आएगा, तो तब करंट का फ्लो जो है वो रुक जाएगा इसके अंदर से। क्यों रुकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये घूमेगा, साथ में ये भी घूमेगी, और जब कार्बन ब्रश इस एरिया में आएंगे जहाँ पे रिंग टूटी हुई है या स्प्लिट है, तो वहां पे उस टाइम पे करंट का फ्लो जो है इट विल बी स्टॉप। सो दिस इज द carbon brushes. So one more question that can come in from the construction part is, what is the function of carbon brushes? To make contact with the rotating ring of the commutator and supply the current to the coil. कि वो rotating ring है या commutator है, उसके साथ कनेक्ट रहेगा और करंट फ्लो कराएगा, और करंट आगे आर्मेचर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। So if अब यूज क्यों करते हैं, why it is used, it is written here, if battery wires directly connected to the split ring, the connecting wire will get twisted and when coil will rotate, कि वो twist हो जाएगा और वो क्या करने लग जाएगा, rotate करने लग जाएगा। So this is the basic diagram of electric motor. So I hope the different components are clear to everyone, because the working will be only clear जब आपको पता होगा कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा काम कर रहा है। So I will again repeat, सेंटर में क्या है, आर्मेचर, इट इज ए रेक्टेंगुलर कोयल, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कोयल कर देते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में ले आते हैं। उसके दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम जनरली फील्ड मैग्नेट बुलाते हैं। द एंड्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कोयल इज कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग, वो उसके साथ स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट होता है, और स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है, इस कोयल के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। क्यों करना है, दैट वी विल डिस्कस इन द वर्किंग। नेक्स्ट इज दीज स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू द कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, इस तरह से रहते हैं कनेक्ट उसके साथ, और वो घूमेगा तो वो कनेक्शन वायर्स ट्विस्ट नहीं होंगे। तो कार्बन ब्रशेस क्या है, जनरली ग्रेफाइट के ब्रशेस होते हैं, वो इसके साथ कनेक्ट रहेंगे एंड इट विल अलाउड द करंट टू पास थ्रू देम। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पार्ट विच इज द बैटरी, की बैटरी का काम क्या है, करंट फ्लो कराएगा आर्मेचर में से, एंड व्हेन करंट फ्लो थ्रू द आर्मेचर इट विल बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, और मैग्नेट क्या करेंगे, दूसरे से रिपेल करेंगे और उसकी वजह से वो घूमने लग जाएगा। दैट इज द डिटेल ऑफ वर्किंग दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। इफ यू हैव एनी डाउट related to the functioning of any of the part, armature, field magnet, split ring, carbon brushes, you can ask in the comment section. So how to write in the notebook? First is the main heading, electric motor. The 1 mark question, what is the basic principle of electric motor? From the construction part, you will rarely find a question to write the construction of electric motor. They will ask you the question about the functioning of armature, role of split ring or commutator,
role of carbon brushes, why carbon brushes are used, why not wires are used. So these type of question generally comes in the form of MCQ or in the form of very short question. So I hope this construction is clear to everyone. In the next module we will discuss about the working of electric motor. So that generally comes in the 5 marks. In the 5 marks question of electric motor, they generally ask, write the basic principle, draw the diagram, and write the working of electric motor. Generally these 3 parts are in the 5 marks question. So now you can take the screenshot and write this electric motor in your spare notebook, and working we will discuss in the next module. So thank you students.